Hello, a very welcome to all of you students. Now, last time in complex numbers, we have seen some basic definitions. That is nothing but we have defined imaginary unit. We have seen the definition of imaginary number. Then we have seen the definition of complex numbers. Then we have seen the definition of complex conjugate. Then under algebra of complex numbers, we have seen how to add, subtract, multiply as well as divide the complex numbers. So this is what we have done in the previous lecture. Now the same knowledge we will continue ahead in the exercise, and let us start solving the problems which are there in the exercise. But यहाँ पे थोड़ा सा मैं मेथड चेंज कर रहा हूँ. Instead of going exercise wise, in fact I will go exercise wise only, but exercise को हम types में divide कर देंगे. So it will be better for us to understand. So students, please write down type 1 exercise 1.1. क्वेश्चन का हेडिंग लिखो आप. Express the following in the form of a plus iota into b, where a and b belongs to R and iota is equal to under root of -1. Also find the value of a and b. Exercise 1.1 का question number 4 is completely dependent on expressing the following in the form of a plus iota b. Please write down the second example. जो simple examples है वो आप खुद भी घर पे भी कर सकते हो. So I'm just doing few random examples. तो ये second example है, question 4 का second one है. I'm just marking we have to express it in form of a plus iota b के form में express करना है. Okay, if this question is asked in exam students, it will carry 2 marks. इसका weightage लिख लो आप. Now let us move on to the solution. ठीक है, लिखो consider, write down the given complex number arrangement. So what is given? 1 plus iota into 1 minus iota to the power -1. Okay, now you can observe students, ये दोनों complex number को हम multiply नहीं कर सकते because this complex number is to the power -1, so we can directly multiply them. Now what we have to do, ये जो second term है यहाँ पर उसको हमें simplify करना है. Now please pay attention. Now we all know the concept students. X raised to minus r can be written as 1 upon x raised to r. Lower standards में हमने ये concept सीखा हुआ है. So now by using this concept, let us simplify the second term of this expression. So write down, this will be further equal to 1 plus iota will remain same. 1 minus iota to the power -1 will be written as 1 upon 1 minus iota to the power +1. So it is very simple to understand students. ये power -1 है. 1 minus iota का power is -1. तो जब denominator में आ जाएगा तो 1 minus iota का power will become +1. What is the reason? To write down, since ये reason है, x raised to minus r is nothing but equal to 1 by x raised to r होता है. Because of this we get the first step. अच्छा, now we can rearrange this. Now this can be written as 1 plus iota upon 1 minus iota. Write down. These two terms are in multiplication. तो इस step को हम ऐसा लिख सकते हैं. Now observe students, we have done division of the two complex numbers. तो जो division of the two complex number का concept है उसको हमें आगे continue करके we have to express this in form of a plus iota b. Now recollect what does the concept says, कि whenever we are having any complex number present in the denominator, we have to multiply and divide by the complex conjugate of the denominator. चलो write down next step after this. लिखो multiply and divide by, ऐसा लिखो multiply and divide by complex
conjugate of the denominator. ऐसा लिखो आप ये स्टेटमेंट है. Initially I am writing down for your reference so that you can understand each and every step that is involved in the problem. अभी डिनोमिनेटर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है, तो रिकलेक्ट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का क्या डेफिनेशन है स्टूडेंट. इफ a प्लस बी आइटा या आइटा बी लिखो. इफ a प्लस आइटा बी इज द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज नथिंग बट a माइनस आइटा बी. तो जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज होता है, प्लस का माइनस एंड माइनस का प्लस. तो बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट the complex conjugate of 1 minus iota is nothing but 1 plus iota. तो लिखो next step, this will be further equal to numerator का 1 plus iota remaining same, denominator का 1 minus iota remaining same into, now complex conjugate of 1 minus iota is nothing but 1 plus iota. तो इससे मल्टीप्लाई किया और 1 plus iota से डिवाइड किया. So you can read this. Multiply and divide by complex conjugate of the denominator. So denominator है 1 minus iota. 1 minus iota का complex conjugate is 1 plus iota. तो उससे multiply और divide किया है. I'm going step wise. I'm writing down each and every step. अभी देखो numerator में 1 plus iota into 1 plus iota. So that will give us nothing but 1 plus iota the whole square upon in the denominator a minus b into a plus b होता है a square minus b square. That will give us 1 square minus iota square. ठीक है. अच्छा, अभी डिनोमिनेटर के लिए मैं रीजन लिख देता हूँ. फॉर द डिनोमिनेटर we have applied this formula. a minus b into a plus b is nothing but equal to a square minus b square होता है for the denominator. Okay, चलो please write down till here, then we'll move ahead after this. Now what we'll do students, we will use a plus b the whole square का formula in the numerator. Numerator को हम expand करने वाले हैं. तो चलो let us write down the next step. Just give me a minute for that. तो write down next step लिखो. अच्छा, left hand side is same. तो लिखो left hand side क्या है students, therefore left hand side is 1 plus iota into 1 minus iota to the power minus 1. ठीक है. चलो before that let's write down this. जो left hand side है सब जगह पे left hand side is going to remain. ठीक है. ये भी इधर भी वही है. This is also 1 plus iota into 1 minus iota to the power minus 1 है. ये भी वही सेम चीज है, 1 plus iota into 1 minus iota to the power minus 1 है, सब जगह पे है. ठीक है. इक्वल टू now a plus b the whole square. So we all know the formula. So it is a square plus 2ab plus b square upon in the denominator. Let us keep the denominator same. I'll tell you why. ऐसा लिखो आप. न्यूमरेटर में हमने a plus b the whole square का फॉर्मूला यूज किया है स्टूडेंट्स. तो दैट फॉर्मूला इज ऑलरेडी नोन टू अस, तो वो मैं आपको लिख के नहीं दे रहा हूँ. तो प्लीज नोट डाउन दिस स्टेप. अच्छा, नाउ स्टूडेंट रिकलेक्ट, वी हैव डन इट लास्ट टाइम. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. वी हैव टू रिमेम्बर दैट आइटा स्क्वायर का वैल्यू इज -1. ये बेसिक वैल्यू हमें याद रखना है. When I have defined imaginary unit, तो imaginary unit कैसे डिफाइंड होता है? तो it is defined as I equal to under root of -1 along with I square equal to -1. तो I square equal to -1 ये वैल्यू मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिख दिया है. वैसे थियरी पार्ट में मैंने आपको लिख के भी दिया हुआ है. नोट डाउन. Now what will happen students? We will replace the value of iota square over here. तो देखो नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा. तो दिस विल बी फर्दर इक्वल टू 1 स्क्वायर इज 1 इटसेल्फ प्लस 2 आइटा विल रिमेन सेम प्लस आइटा स्क्वायर का वैल्यू इज -1. तो न्यूमरेटर में भी -1 हो जाएगा आइटा स्क्वायर के जगह पे, एंड दिस इज 1 माइनस ऑफ आइटा स्क्वायर के जगह पे -1 आएगा. अच्छा, एग्जाम में आपको रीजन लिखना है,
So reason will be, you'll write down since iota square is equal to -1. This is the reason that we will mention in exam. Please note down. ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए लिखा हुआ है ऊपर. And this is the reason that we will mention in exam. Now, obviously, we can observe students, ये plus of minus is going to become minus. तो क्या हो जाएगा? ये +1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा. So we are left out with what? Numerator में we are left out with 2 iota and the denominator में 1 plus 1 is going to become 2. Write down. Very simple to understand. Now what will happen? 2 iota upon 2 में से ये 2 cancel हो जाएगा. So we are left out only with iota. So write down. Therefore left hand side क्या है students? 1 plus iota into 1 minus iota to the power -1 को जब हमने simplify किया, so we are just left out with iota. Please write down till here. Okay, students. But this is not the final answer. What we have to do? Let us read the question. Express the following in the form of a plus iota b. Also find the value of a and b. तो a plus iota b के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और a और b का भी वैल्यू फाइंड करना है. So write down. This will be written as, now this is only iota, so this can be written as 0 plus 1 into iota. Obviously iota means it is nothing but understood this is 1 into iota. So therefore 1 into iota can be written as 0 plus 1 into iota. First example है तो हर एक स्टेप में लिख रहा हूँ. Okay, so therefore 1 plus iota into 1 minus iota to the power -1 is 0 plus 1 into iota. Now what we'll do? We want to find out the value of a and b also. a plus iota b के फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया है. Now we have to find out the value of a and b also. So write down for your reference. इसके बाद आप लिखो comparing 0 plus 1 into iota with a plus b into iota. Now I have already told to you a plus iota into b is same as a plus b into iota. iota into b लिखो या b into iota लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. So 0 plus 1 into iota we compare with a plus b iota. So compare करो students, what is value of a? Value of a is 0 and how much is value of b? Value of b is 1. So लिखो therefore a is equal to 0 and b is equal to 1. That completes our problem. Please note down. तो जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर था उसको हमने सिंप्लीफाई किया. We have taken the complex conjugate of the denominator and we have expressed the complex number in the form of a plus b iota या a plus iota b बोलो आप. And then we are comparing with this complex number with a plus b iota and we are getting the value of a and b also. That completes our example. Please make a note of this, then we'll move on to the next question. Now, before we move on to next example, students, here you have to remember one more thing. It is not necessary that whatever problems are given in the textbook, that same problems should come in exam. ऐसा कोई रूल नहीं होता है. जैसे 10th standard में होता है कि same examples आते हैं. There is no rule as such in 11th as well as in 12th standard. So we need to understand अभी इसमें क्या changes कर सकता है examiner. So please observe, do not write down. अभी instead of giving this question, I can give you this question. ये ऐसा दिया है 1 plus 2 iota into 1 minus, या चलो ऐसा लिखते हैं 4 minus 3 iota to the power -1 दिया है. If I give you this example, now you cannot say अरे सर आपने ये वाला प्रॉब्लम नहीं किया. ऐसे तो फिर द प्रॉब्लम का जो सीरीज है वो कभी खत्म ही नहीं होगा. बिकॉज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटर्न ओवर हियर. यही सेम एग्जाम्पल मैं ऐसा भी दे सकता हूँ आपको.
this can be, I can write this as 1 minus 5 iota to the power minus 1 into 2 plus iota. Express this in form of a plus b iota. तो इसमें चेंज कर दिया, इसमें पावर माइनस 1 वाला टर्म पहले लिख दिया और फिर 2 प्लस आयोटा वाला टर्म मैंने बाद में लिख दिया. So these changes can be made at any point of time. मतलब अगर ये एग्जांपल दिया है, प्रोसीजर आप याद रखो. We have to remember the procedure, the method of solving the problem. We cannot remember a problem. Problems हमें बहुत सारे करने हैं. Hundreds and thousands of problems we have to do in numbers when I'm speaking, you know. तो कोई एक प्रॉब्लम को पकड़ के हम नहीं रख सकते कि यही प्रॉब्लम आएगा. Problems will keep on changing. उसका जो मेथड है सॉल्विंग का, वो ऐसे टाइप ऑफ प्रॉब्लम के लिए वो मेथड सेम रहने वाला है. तो 1 plus 2 iota will remain same. इसका पावर +1 हो जाएगा. And then we have to do these two problems same as we have done this. So please note down these two problems. ये आपका homework section है. No doubt, they are not textual examples. ये textbook के problems नहीं है. तो ये दो problems को आपको homework के लिए करना है. See, your practice plays a very important role. मेरा सिखाना तो important role play करता ही है, but your practice also plays a very important role after my teaching. So these two problems you will do it as homework section. तो ये second example हो गया. ये मैंने star mark किया है क्योंकि ये extra problems है, non textual examples. Please make a note of this. Then we'll move on to the second example. Next example, I mean to say. So please note down the next example, students. Question 4 का example 4 है. Now, if this question is asked in exam, इसका weightage होगा 3 marks. So let us write down the solution for this example. So first of all, let's consider this. लिखिए, consider, write down this given arrangement of complex number 2 plus iota upon 3 minus iota into 1 plus 2 iota. And what we have to do, students, we have to express this complex number in form of a plus iota b. And also we have to find out the value of a and b. तो ये भी चीज मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ. Also find the value of a and b. Now in this problem, students, what we are going to do, first we will multiply these two complex number in the denominator. Now remember, when we are doing division of the two complex number, उसमें सारी चीजें कवर हो जाती है. डिवीजन में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना पड़ता है. We have to multiply the complex numbers, then we have to add and subtract also. So everything gets covered up when we are doing division of complex number का problem. Write down. तो सबसे पहले क्या करेंगे, we'll be multiplying these two brackets. तो न्यूमरेटर सेम रहेगा, 2 plus iota remains the same. Now denominator में जब हम multiply करेंगे, so this 3 will be multiplied to both the terms. So write down what will happen. अभी हम थोड़ा directly करेंगे. So 3 into 1, 3 into plus 2y is positive 6 iota. Similarly, what will happen, students? Minus iota will be multiplied to 1 and minus iota will be multiplied to 2 iota. ठीक है, तो क्या मिलेगा? Minus iota into 1 is minus iota, minus of plus is minus, iota into 2 iota is 2 into iota का square. Write down the step. We have just opened up the brackets in the denominator. और कुछ नहीं किया है. Numerator remaining same. So this will be further equal to what, students? So this will be equal to numerator remaining same 2 plus iota upon denominator में we will substitute the value of iota square. हाँ, देखिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है. Iota square का value is -1. So write down what will happen in the denominator. This 3 remaining same. Now see, these are the two like terms. 6 iota, positive 6 iota minus iota is positive 5 iota. Minus 2
इनटू आयोटा स्क्वायर का वैल्यू इज -1। ठीक है, रीजन मैंने वहां पे मतलब लिखा हुआ है ऑलरेडी। So this is further equal to what? This is 2 plus iota in the numerator and in the denominator. Okay, अभी आप देखोगे यहाँ पे -2 into -1, तो ये वाला जो पार्ट है ये +2 हो जाएगा। तो 2 plus 3 is 5 plus 5 iota। तो टू सेव टाइम हर एक स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि माइनस ऑफ माइनस आप प्लस करके बताओ फिर 2 + 3 5 लिखो। इट इज नॉट नेसेसरी, यू कैन डू इट डायरेक्टली राइट डाउन। तो यहाँ पे मैं रीजन लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। तो आयटा स्क्वायर का वैल्यू -1 हमने यूज किया है। ठीक है, राइट डाउन टे लिया। तो नाउ यू ऑब्जर्व स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है and denominator is also containing a complex number. So what does the method say? We are having division of two complex numbers. So whenever we are having division of two complex numbers, we are supposed to multiply and divide by the complex conjugate of the denominator. So लिखो statement on the next line, multiply and divide। अभी मैं symbol डाल रहा हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है और ये डिवीजन का सिंबल है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। हाँ, चलो ठीक है, अभी फिलहाल मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ, ऑफ द डिनोमिनेटर। प्लीज नोट डाउन दिस स्टेप। So therefore, I'll just continue it over here. तो स्टूडेंट्स देखो क्या मिलेगा, therefore लेफ्ट हैंड साइड तो जो क्वेश्चन में था वही रहेगा। तो 2 + आयोटा अपॉन 3 - आयोटा इंटू 1 + 2 आयोटा इज इक्वल टू, आई जस्ट राइट डाउन दिस स्टेप वंस अगेन, 2 + आयोटा अपॉन 5 + 5 आयोटा। नाउ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ 5 + 5 आयोटा, तो 5 + 5 आयोटा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज 5 - 5 आयोटा से हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। चलो राइट डाउन दिस स्टेप। तो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में वी ऑलवेज मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। दैट इज व्हाट वी हैव डन। नाउ व्हाट वी डू नेक्स्ट स्टूडेंट्स, तो न्यूमरेटर में ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड एट द सेम टाइम डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म a + b into a - b। लेट्स कैरी आउट नेक्स्ट स्टेप। लिखो देयरफॉर, अभी थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड से लिखता हूं मैं। Therefore students, what is going to happen? So continue. By that time you multiply the two complex numbers in the numerator। न्यूमरेटर 2 + आयोटा रिमेनिंग सेम, ये लेफ्ट हैंड साइड तो सेम ही रहेगा। नाउ लेट्स मल्टीप्लाई। तो 2 दोनों को मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 5 = 10, 10 - 10 आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस 5 into आयोटा स्क्वायर। दिस इज द न्यूमरेटर। Denominator a + b into a - b, so that is nothing but a square minus b square। राइट डाउन। न्यूमरेटर में क्या किया, ब्रैकेट ओपन किया, तो ये जो 2 है वो ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई हो गया, वी गेट दिस, एंड देन लेटर ऑन दिस आयोटा also gets multiplied to both the terms, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। So now let's simplify। So this will be further equal to what students? 10 remaining same minus 10 iota plus 5 iota is -5 iota minus 5 iota square remaining same upon in the denominator 5 square is 25 minus this is 25 into iota square। ठीक है, अभी दोनों जगह पे हम आयोटा स्क्वायर का वैल्यू रिप्लेस करेंगे बाय -1। देखो ऊपर लिखा है मैंने
आयोटा स्क्वायर का वैल्यू रिटर्न ओवर हियर इज -1। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे। So what will be next step? Write down. This is further equal to 10 minus 5 iota. Iota square का value is -1 upon same thing in the denominator also. ब्रैकेट में मतलब वो मल्टीप्लिकेशन में है। अच्छा, नाउ वी नीड नॉट टू राइट डाउन दिस रीजन। एक बार हम ऑलरेडी लिख चुके हैं iota square is -1, तो अगेन वी नीड नॉट टू राइट डाउन दैट एज अ रीजन। तो देखो अभी ये क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बिकम +5, -5 इंटू -1 +5 होता है, तो 10 + 5 दैट इज नथिंग बट 15। तो 15 - 5 iota अपॉन +25, 25 + 25 that is nothing but 50. So 15 - 5 iota upon 50. Okay, now in the numerator I can take 5 common. थोड़ा मैं इसी स्टेप में लिख रहा हूँ, तो 5 कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर में। तो व्हाट विल बी लेफ्ट आउट इन द न्यूमरेटर, 3 माइनस iota अपॉन 50 रहेगा एज इट इज। सिर्फ न्यूमरेटर में 5 कॉमन लिया। Now you know 5 10s are 50, so this is going to become 3 minus iota upon 10. ठीक है, write down. अब लेफ्ट हैंड साइड तो सेम रहेगा स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड इज सेम थ्रू आउट। So now, but this is not the final answer. हमें क्या करना है, we have to express the following in the form of a plus iota b, and then we have to also find out the value of a and b. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, we'll split the denominator. So write down, what will this become? This will be written as 3/10 minus iota by 10 अपॉन स्प्लिट किया। रिकलेक्ट डिविजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जब मैंने आपको सिखाया था, तो हमने वहां पे एक जो एग्जांपल लिया था वहां पे डिनोमिनेटर स्प्लिट किया था। नाउ दिस विल बी फर्दर रिटर्न एज 3/10 प्लस ऑफ -1/10 इंटू आइटा। सी दिस, कौन से फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, a प्लस आइटा बी, a प्लस आइटा बी या a प्लस बी आइटा बी चलेगा, ठीक है ना। माइनस, सी प्लस ऑफ माइनस इज माइनस, 1/10 इंटू आइटा इज आइटा बाई 10। तो अभी हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं हम। देयरफॉर व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड, न्यूमरेटर इज 2 प्लस आइटा एंड डिनोमिनेटर इज 3 माइनस आइटा इंटू 1 + 2 आयोटा। ऐसा लिख लो आप इसको। नाउ वी हैव एक्सप्रेस दिस इन फॉर्म ऑफ a प्लस आइटा बी। अभी हमें a और b का वैल्यू फाइंड करना है। तो राइट डाउन, कंपेयरिंग 3/10 प्लस ऑफ -1/10 इंटू आयोटा with what, a plus b आयोटा। तो इसको इससे कंपेयर करना है। तो सी वेरी क्विकली एंड वेरी सिंपल थिंग, a का वैल्यू इज 3/10 एंड b का वैल्यू इज -1/10। तो लिख लो, देयरफॉर लास्ट स्टेप, a का वैल्यू इज नथिंग बट 3/10 एंड b का वैल्यू is nothing but -1/10, and that completes our problem. Please remember, a and b they are real numbers। यहाँ पे देखो a and b belongs to set of real numbers। तो जब स्पेशली आप b लिखोगे ना, along with b iota should not be written। b is coefficient of iota, iota into b है ये, तो b का वैल्यू is -1/10 to be written। Please note down, problem is over। ठीक है। Now only one thing you have to remember students, I have seen many students doing one mistake। जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, तो वो स्टूडेंट्स ये वाले स्टेप में मिस्टेक करते हैं। अब कैसा मिस्टेक होता है ध्यान देना, मैं आपको समझाता हूँ। जस्ट पे अटेंशन ऑन द एक्सप्लेनेशन। प्रॉब्लम इज ऑलरेडी ओवर, आंसर हमें मिल चुका है। अब स्टूडेंट कहाँ पे रॉन्ग जाता है मैं आपको बताता हूँ।
जब ये सॉल्व करता है ना वो ये वाला पार्ट, तो व्हाट ही डज 5 स्क्वायर माइनस 5 आयोटा स्क्वायर ऐसा लिखता है इसको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी इसमें और इसमें जमीन आसमान का डिफरेंस है, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस। नाउ सपोज इफ आई जस्ट सॉल्व दिस, सी व्हाट विल हैपन। तो नो डाउट 5 स्क्वायर इज 25, बट गलती से अगर आप ये भूल गए कि ये स्क्वायर 5 के लिए भी है, तो क्या हो जाएगा, दैट आई एम एक्सप्लेनिंग। सी -5 विल रिमेन सेम एंड आइटा स्क्वायर का वैल्यू -1 हो जाएगा। मैंने बहुत बार देखा है कि स्टूडेंट ऐसा होल स्क्वायर नहीं डालता है उसको, तो वो गलती हो जाएगी। एंड इफ दैट हैपेंस, व्हाट विल हैपन, तो 25 प्लस 5 डिनोमिनेटर विल बिकम 30। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस 5 अयोटा द होल स्क्वायर डालना जरूरी है। तो दिस ब्रैकेट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, है ना, हमें सिखाया जाता है लोअर स्टैंडर्ड्स में, ब्रैकेट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो ब्रैकेट नहीं डालोगे तो देखो डिनोमिनेटर 30 हो जाएगा, जबकि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 50। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू पे अटेंशन एट दिस पॉइंट, ठीक है। एंड ऑब्वियसली जब हम प्रॉब्लम्स करते हैं तो सब जगह पे ध्यान रखना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स प्रॉपरली, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सही से लेना है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ईच एंड एवरी स्टेप काउंट्स, इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो, तो मेरे को आपको एक्सप्लेन करना था, वो मैंने बता दिया। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। अच्छा, वन मोर थिंग, चेंज कैन बी मेड ओवर हियर। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको होमवर्क सेक्शन के लिए देना चाहूंगा। नाउ एज आई सेड इन द प्रीवियस एग्जांपल आल्सो, आई हैव गिवन यू 2 प्रॉब्लम्स फॉर होमवर्क। अब इसमें भी सेम थिंग कंटिन्यू होगा। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ये टेक्स्ट बुक में दिया है तो यही एग्जाम में आएगा, नॉट नेसेसरी। तो नोट डाउन योर होमवर्क एग्जांपल। तो लेट्स नोट डाउन द होमवर्क एग्जांपल। इस बॉक्स में मैं लिख देता हूँ होमवर्क प्रॉब्लम, ठीक है। क्वेश्चन का हेडिंग वही है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फॉर्म ऑफ a प्लस आइटा बी। इसमें एक स्टार मार्क करके लिखो आप एग्जांपल। 5 प्लस आइटा या अयोटा इंटू 2 माइनस 3 अयोटा अपॉन 1 प्लस अयोटा। अभी इसका उल्टा मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। नाउ प्रोसीजर वही है। नाउ फर्स्ट विल मल्टीप्लाई दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये दोनों को पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर में, फिर वो जो आएगा उसके बाद वी हैव टू मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। तो जो प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो किया था वही यहाँ पे फॉलो करना है। इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया था या न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट तो डिनोमिनेटर का ही लेना है, ओके। एग्जाम्पल नॉट सिमिलर टू दिस, दूसरा कोई मैं आपको रिटर्न अयोटा इंटू 2 प्लस 3 अयोटा अपॉन 5 माइनस 2 अयोटा। तो ऐसे ही सेम एग्जांपल टेक्स्ट बुक में भी है, बट दिस आर नॉन टेक्सचुअल एग्जांपल। ओके स्टूडेंट्स, देयर वाज अ कनेक्टिविटी इशू, तो आपको थोड़ा सा बोर्ड क्लियरली नहीं दिख रहा था। नाउ इट्स क्लियर। नाउ प्लीज नोट डाउन दीज 2 प्रॉब्लम्स फॉर होमवर्क सेक्शन। So these are non-textual examples और ये दोनों प्रॉब्लम्स आपके लिए होमवर्क सेक्शन के लिए है। Then we'll move on to the next one. ये आप लिख दो दोनों। Please note down the next example. Question 4 का 5th example है 1 plus iota upon 1 minus iota the whole square. If this question is asked in exam, students, it is going to carry 2 marks. बहुत ही सिंपल है, तो जल्दी से इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। डाउन
consider, लिखो 1 plus iota upon 1 minus iota the whole square. तो सबसे पहले क्या सिंप्लीफिकेशन करना है स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो होल स्क्वायर है ना, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को स्प्लिट हो जाएगा. So what will numerator become? It will become 1 plus iota the whole square and denominator will become 1 minus iota the whole square. Why? We know that अगर a upon b the whole square है तो it is nothing but a square upon b square. तो जो पावर रहता है वो न्यूमरेटर को भी स्प्लिट होता है और डिनोमिनेटर को भी स्प्लिट होता है. So that's what we have done. फर्स्ट स्टेप हो गया. Now use a plus b the whole square का फॉर्मूला in the numerator and a minus b the whole square का फॉर्मूला in the denominator. Put it down. This will be further equal to what? चलो अप्लाई करो फॉर्मूला. So this will be a square plus 2ab and 2 times of this into this will give you 2 iota plus iota square. Denominator में क्या मिलेगा? a minus b the whole square, that is a square minus 2ab plus b square. Now we will substitute the value of iota square. Put it down students. What will this become? 1 square is 1 plus 2 iota will remain same. Iota square का value -1 है तो प्लस ऑफ -1, तो ये -1 हो गया. डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अपॉन डिनोमिनेटर में दिस इज 1 minus 2 iota and -1. रीजन चाहिए तो आप लिख लो ओवर हियर, सिंस iota square is equal to -1. तो जैसे हम iota square के जगह पे -1 डालेंगे तो प्लस ऑफ माइनस इज माइनस. अलाउड है, इतना डायरेक्ट लिख सकते हो आप. Now what will happen? As we all know, -1 plus 1 गया, -1 plus 1 गया. So what is left out with us? 2 iota upon -2 iota, which is nothing but equal to what? अब ये 2 iota cancel हो गया, तो क्या बच गया? वो we are left out with -1. But what we have to do? We have to express the following in the form of a plus iota b के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. And we have to find out the value of a and b also. Put it down. This will be further equal to, now this -1 can be written as -1 plus 0 into iota. लेफ्ट हैंड साइड क्या है स्टूडेंट्स इसका? इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है इट इज 1 plus iota upon 1 minus iota the whole square is equal to this. So we have expressed this in form of a plus iota b या b iota. अब क्या करेंगे? We'll compare this with a plus iota b to find out the value of, or to write down the value of a and b. जैसे लिखो लास्ट स्टेप, comparing okay, comparing -1 plus 0 iota with a plus b iota. अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ, जो रिमेनिंग पार्ट है that I'm continuing it over here. इसके बाद यहाँ पे, so therefore students, what is the value of a? So value of a is -1 and the value of b is nothing but 0. That completes our problem. ये हमारा फाइनल आंसर है. a का वैल्यू -1 है और b का वैल्यू 0 है. प्लीज नोट डाउन, प्रॉब्लम इज ओवर. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, व्हेन वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इसमें जब हमने सिंप्लीफाई किया तो डिनोमिनेटर में देयर इज नो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी. तो ऑटोमेटिकली सिंप्लीफाई होके वी हैव गॉट द आंसर. ओके, प्लीज मेक अ नोट, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल.
So students, please note down the next example. Question 4th का 7th example है 1 plus iota to the power minus 3. अच्छा, now before we move on to this problem, iota square का value I have already written, but थोड़े और basic values लिख लेते हैं. चलो, now what you do is iota square, अभी इसको रब नहीं करता हूँ. Iota square is -1, then iota cube is equal to minus iota होता है एंड iota रेज टू 4 का वैल्यू 1 होता है. ये 3 बेसिक वैल्यूज आप नोट डाउन कर लो. डोंट वरी, इसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स है पावर्स ऑफ आयोटा, तो पावर्स ऑफ आयोटा के प्रॉब्लम्स वी आर गोइंग टू डू एज अ सेपरेट टाइप, बट ये अभी हमको एग्जांपल्स में लगने वाला है. तो जस्ट नोट डाउन दीज बेसिक वैल्यूज. iota स्क्वायर का वैल्यू -1 इज ऑलरेडी नोन टू अस. iota cube is equal to minus iota and iota raised to 4 का वैल्यू इज 1. ये बेसिक वैल्यूज आप लिख लो एट द टॉप ऑफ द पेज. नाउ जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल किया था, वही सेम कंसेप्ट पे हमें चलना है. x रेज टू माइनस r कैन बी रिटन एज 1 अपॉन, इसको 1 अपॉन में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. राइट डाउन सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल 7. देखो, write down the given expression. So write down, consider, write down this expression 1 plus iota to the power -3 दिया है. Now first step, what will happen students? So this will be written as 1 upon 1 plus iota to the power 3 हो जाएगा. As I have explained, -3 पावर है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा +3. व्हाट इज द रीजन? पहले भी मैं लिख चुका हूँ एक प्रॉब्लम में. x रेज टू माइनस r इज 1 अपॉन x रेज टू r. तो जहां पे भी आपको ऐसा दिखेगा पावर, ऑलवेज मेक इट पॉजिटिव. जरूरी नहीं है कि प्रॉब्लम यही होना चाहिए. कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट. प्रॉब्लम्स विल कीप ऑन चेंजिंग. डोंट वरी, आई विल गिव यू होमवर्क सेक्शन आल्सो. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, a plus b the whole cube का फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं हम. So let's apply the formula. Now for your reference, I will write down the formula. What you can do, at the top of the page, पेज के ऊपर आप a plus b the whole cube का फॉर्मूला नोट डाउन कर लो. I'm writing it down over here. So a plus b the whole cube is equal to what? So that is equal to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. We have done it in 10th standard. लोअर स्टैंडर्ड में हमने ये फॉर्मूला ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है. अगर प्लस है तो राइट हैंड साइड में सभी जगह पे प्लस आएगा. बट इफ इट इज अ माइनस साइन, अगर a माइनस बी द होल क्यूब है, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव. a प्लस बी, अगर लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है तो राइट हैंड साइड में सब जगह पे प्लस आएगा. अगर a माइनस बी द होल क्यूब है तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन डालना है. तो प्लीज नोट डाउन बोथ द फॉर्मूलाज, प्लस एज वेल एज माइनस, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे एग्जांपल में 1 माइनस आयोटा आ जाए इंस्टेड ऑफ 1 प्लस आयोटा. तो वी शुड नो द फॉर्मूलेज. ओके, अभी तो हमें a प्लस बी द होल क्यूब का ही फॉर्मूला यूज करना है. तो लेट अस यूज दैट. राइट डाउन नेक्स्ट स्टेप, this will be further equal to, ठीक है, a cube, so 1 cube plus 3 times of a square into b plus 3 times of a into b square plus b cube. ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया. Now what we'll do, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू देखो वहां पे ऊपर मैंने लिखा हुआ है एट द टॉप. स्टूडेंट्स, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू इज -1, यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा. एंड आयोटा क्यूब का वैल्यू इज नथिंग बट माइनस आयोटा. So next step, this is further equal to. Okay, now few simplifications can be done. 1 cube is 1. अब देखो ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई होने वाले हैं. तो 3 into 1 into iota, so that is nothing but 3 iota. यहाँ पे
3 into 1 is nothing but 3, and iota square will be replaced by -1, plus iota cube will be replaced by minus iota. ये हमारा डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर में 1 है ऑलरेडी. तो हम सिंप्लीफिकेशन साथ साथ में करते जाते हैं ताकि स्टेप्स थोड़े कम हो जाए. So write down, this will be further written as so let's simplify this student first. So numerator में 1 is going to remain same. अभी ये लिख लो आप, आपके रेफरेंस के लिए मैं स्टेप वाइज जा रहा हूँ. This is 1 plus 3 iota, this is minus 3 and this is minus iota. Now रीअरेंज, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड करना है. So write down, what is going to happen? न्यूमरेटर में 1 है. नाउ रियल पार्ट, 1 minus 3 is -2 plus 3 iota minus iota is plus 2 iota. So this is what we are left out in the denominator. Write down. लेफ्ट हैंड साइड तो जो है तो रहेगा ही. It is 1 plus iota to the power -3. Write down. Now, what do you observe, students, over here? Denominator में we are having a complex number. So denominator में whenever we are having a complex number, we will multiply divide by the complex conjugate of the denominator. ठीक है? तो write down. चलो ये तो फॉर्मूला है, तो इसको मैं यहाँ पे लाइन डाल देता हूँ. तो ये ऊपर वाला पार्ट हो गया. Now write down after this step, ऐसे लिखो, multiply and divide by complex conjugate of denominator. अभी डिनोमिनेटर का शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं मैं, इसे d to the power r. डिनोमिनेटर पूरा स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है. Write down. Therefore, what will happen? 1 plus iota whole to the power -3 is equal to 1 upon -2 plus 2 iota is already present. So -2 plus 2 iota का complex conjugate will be what, students? So it will be -2 minus 2 iota. इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से हम डिवाइड करेंगे. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस स्टेप. Yes, I hope the board is clearly visible. Yeah, okay. Now what will happen? Numerator तो 1 into है, so 1 into anything is same. So numerator is -2 minus 2 iota, and denominator is of what form? So it is of the form a plus b into a minus b. तो वो हो जाएगा a square minus b square. Write down, what will that become? -2 का square minus 2 iota का whole square हो जाएगा. So this is further equal to numerator remaining same, -2 minus 2 iota upon -2 का square करेंगे plus 4 minus this is going to become 4 into iota square. Now we all know, students, iota square का value -1 होता है. So numerator remaining same, -2 minus 2 iota upon, चलो अभी मैं थोड़ा सा यहीं पे लिख देता हूँ फर्स्ट स्टेप. तो इसका इक्वल टू 1 स्टेप आई एम राइटिंग डाउन ओवर हियर, -2 minus 2 iota अपॉन दिस इज 4 -4 into iota स्क्वायर का वैल्यू इज -1. ठीक है ना? तो जो iota स्क्वायर का वैल्यू वो -1 यहाँ पे डाल दिया. तो इसके पहले ये स्टेप आप लिख लो. एंड न्यूमरेटर रिमेनिंग सेम. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? 4 plus 4, so denominator is going to become 8. Reason we already know, students, that iota square का value is -1. We have used it over here. बस अब क्या करना है? We have to express it in form of a plus iota b. तो split up the denominator. अच्छा, denominator split करने से पहले you can see one more thing. You can take 2 common also. but ठीक है, वो हम बाद में भी कर लेंगे. So let us split up the denominator. So this will be written as -2 by 8 minus 2 iota by 8.
ठीक है, which will be further written as now minus 2 by 8 means it is minus 1 by 4. ठीक है, तो and this is minus 1 by 4 into iota, ऐसा हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो दिस विल बी रिटन एज माइनस 1 by 4 प्लस ऑफ minus 1 by 4 into iota. We have to express it in what form? A plus B iota के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो ये करना जरूरी है। तो नाउ विल कंपेयर, लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख लो, लेफ्ट हैंड साइड इज 1 प्लस iota टू द पावर माइनस 3 है ये। तो वी हैव एक्सप्रेस्ड दिस इन फॉर्म ऑफ a प्लस b iota। अभी हम कंपेयरिंग करेंगे। सी मेथड इज सेम, जितने भी प्रॉब्लम्स हमने किए सब में जो मेथड है कि a प्लस बी आई के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, कंपेयर करो, वर्किंग रूल इज सेम। So write down comparing minus 1 by 4 plus of minus 1 by 4 into iota with a plus b iota. तो कंपेयर करेंगे तो लिखो डायरेक्टली, therefore the value of a is minus 1 by 4 and value of b is also minus 1 by 4. तो a और b का वैल्यू मिल गया, प्रॉब्लम इज completed. Please note down. Then we'll move on to the next example. So students, please note down your homework section. इसी में कुछ थोड़े चेंजेस करके मैं आपको होमवर्क एग्जांपल्स भी दे रहा हूँ। तो इन दिस बॉक्स आई विल राइट डाउन योर होमवर्क। ठीक है, तो फर्स्ट आप लिखिए, I'll make some change in this, 1 plus 2 iota to the power minus 2। ये कर दिया, इधर पावर माइनस 3 दिया था, इधर माइनस 2 कर दिया मैंने पावर, यहाँ पे 1 प्लस आइटा दिया था, यहाँ पे 1 प्लस 2 आइटा दे दिया मैंने और पावर माइनस 2 कर दिया। एक एग्जांपल आप होमवर्क के लिए करना। एंड अनदर एग्जांपल दैट यू कैन डू इज 2 minus 3 iota to the power minus 2। ठीक है, चलो ये दो कर रहा हूँ होमवर्क सेक्शन। तो एक प्लस वाला दिया, एक माइनस वाला दिया, दोनों का पावर माइनस 2 है। दिस इज योर होमवर्क सेक्शन, नोट डाउन। ये है आपका होमवर्क। तो साथ साथ में ये प्रॉब्लम्स भी होते जाएंगे ना, आपको तो उतना प्रैक्टिस मिलेगा। राइट डाउन, देन विल मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So students, please note down the next example. 2 plus under root of minus 3 upon 4 plus under root of minus 3. We have to express this in form of a plus iota b. Write down solution for the problem. देखो, consider, write down this 2 plus root minus 3 upon 4 plus root minus 3। ठीक है, नाउ सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, प्लीज पे अटेंशन, आप बाद में लिख लेना। लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। नाउ रिकलेक्ट, इन द वेरी बिगिनिंग जब मैंने आपको इमेजिनरी नंबर का डेफिनेशन दिया और जब मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, आई हैव गिवन यू वन जनरलाइजेशन। प्लीज चेक इन योर नोटबुक, वी हैव रिटन अंडर रूट ऑफ माइनस ए इज नथिंग बट रूट ए इंटू आयोटा। देखो आपको नोटबुक में मिलेगा जहाँ पे हमने लिखा है ना डेफिनेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर, जहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हैं वहां पे ये जनरलाइजेशन लिखा हुआ है मैंने। दिस कंसेप्ट इज टू बी यूज्ड ओवर हियर। ठीक है, राइट ऑन फर्स्ट स्टेप, 2 plus under root of minus 3, so 2 remaining same, under root of minus 3 will be written as root 3 into iota। denominator में भी this will be written as 4 plus root 3 into iota। why so? ये रीजन आप नोट डाउन कर लो, since under root of minus a is equal to root a into iota। ठीक है, ये एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, you can write down directly। Now what we'll do, देखो न्यूमरेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है,
डिनोमिनेटर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, so will multiply by the complex conjugate of the denominator. Write down after this step, multiply and divide by complex conjugate of denominator. ऐसा लिख लो आप. So students, this will be further equal to what? Write down. You know, start doing. आपको मेरे लिए रुकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. If you know the procedure, you can move ahead into 4 plus root 3 iota का complex conjugate will be 4 minus root 3 iota. ठीक है. Now numerator में bracket open करेंगे. So write down what will numerator become? 2 4 8 minus 2 root 3 iota plus root 3 iota will be multiplied to this plus 4 root 3 iota plus of minus is minus root 3 into root 3 is 3 iota into iota is iota square upon in the denominator a plus b into a minus b, so that is nothing but 4 square minus root 3 iota the whole square हो जाएगा. Now let's simplify this also. इसको जब हम simplify करेंगे तो this 8 remaining same minus 2 root 3 iota plus 4 root 3 iota is positive 2 root 3 iota. These two are like terms. Like terms can be added and subtracted. इसको simplify किया. Now what we'll do? Iota square का value डाल सकते हैं. तो minus 3 into iota square का value is minus 1. At the same time 4 square this is 16 minus root 3 का square is 3 and iota square का value is minus 1. दोनों एक साथ कर लिया हमने. root 3 का square 3 लिख दिया और iota square का value हमने minus 1 लिख दिया. To save the time this is allowed है, इतना कर सकते हैं हम directly. अच्छा रीजन लिख लो आप यहाँ पे, since iota square is equal to minus 1. अगर आप डायरेक्ट लिख रहे हो ऐसा नो प्रॉब्लम एब्सोल्युटली, खाली आप ये रीजन मेंशन कर देना कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है. चलो नाउ लेट्स सिंप्लीफाई न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर. स्टूडेंट्स तो लिखो देयरफॉर 2 प्लस अंडर रूट ऑफ -3 अपॉन 4 प्लस अंडर रूट ऑफ -3 इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू, दिस इज +3, 8 plus 3 is 11. तो ये हो जाएगा 11 plus 2 root 3 iota अपॉन डिनोमिनेटर में 16 plus 3 is 19. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, आपको पता है, यू हैव टू एक्सप्रेस इट इन फॉर्म ऑफ a plus iota b. तो डिनोमिनेटर को स्प्लिट करो. दिस विल बी रिटर्न एज 11 by 19 प्लस दिस विल बी रिटर्न एज 2 root 3 by 19 into iota. आयोटा इसको मल्टीप्लाइड है. तो इसको हम कंपेयर करेंगे a प्लस आयोटा b से. दिस इज अवर सेकेंड लास्ट स्टेप. ये एक्सप्रेस हो गया. we have expressed in form of a plus b iota. Now we have to compare and write down the value of a and b. तो देखो comparing 11 by 19 plus 2 root 3 by 19 iota with a plus b iota. So students, what is value of a? The value of a is 11 by 19 and the value of b is 2 root 3 by 19 and the problem is over. ठीक है. Write down. अच्छा, weightage for this problem will be 2 to 3 marks, maybe 2 or maybe 3. चलो लिख लो आप इसको. Okay, so students, question 4th का 11th example note down. This is the problem.
अभी आपको थोड़ा सा ये ऐसा लग रहा होगा कि अरे बाप रे ये कौन सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल ले लिया, बट इट्स अ सिंपल वन। ओनली ये जो पावर्स ऑफ अयोटा है उसको हमें सिंप्लीफाई करना है। डोंट वरी, आई गिव यू द एक्सप्लेनेशन। जस्ट नोट डाउन द क्वेश्चन। ओके, दिस क्वेश्चन इफ इट इज आस्क्ड इट विल कैरी 3 to 4 मार्क्स। जनरली 3 मार्क के लिए आएगा, बट स्टिल मे बी 3 मे बी 4, इट डिपेंड्स। चलो सॉल्यूशन, लेट अस कंसिडर दिस गिवन एक्सप्रेशन। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सप्रेशन दिया है इसको हम कंसिडर कर लेते हैं। तो दिस इज 4 अयोटा रेज टू 8 माइनस 3 अयोटा रेज टू 9। ध्यान रखना ये जो पावर 8 है वो अयोटा का है। अयोटा रेज टू 9 प्लस 3 अपॉन इन द डिनोमिनेटर 3 iota raised to 11 minus 4 iota raised to 10 minus 2 equals to. Now what I do students, please pay attention, give me 5 minutes to write and explain. ये थोड़ा सा एक नया कंसेप्ट पे जाने वाले हैं, नॉट एग्जैक्टली नया कंसेप्ट बट ये सारे वैल्यूज यूज करने वाले हैं हम। नाउ सी बेसिक वैल्यूज, अयोटा स्क्वायर का वैल्यू इज -1, अयोटा क्यूब का वैल्यू इज नेगेटिव अयोटा एंड अयोटा रेज टू 4 का वैल्यू है 1। तो अयोटा स्क्वायर का जो बेसिक वैल्यू है -1 उसको यूज करके वी विल फाइंड आउट ऑल द रिमेनिंग वैल्यूज। तो प्लीज पे अटेंशन, व्हाट आई एम डूइंग इज, चलो मैं इसका जो वर्किंग है ना वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एक्चुअली वर्किंग एग्जाम में आप नहीं शो करोगे तो भी चलेगा, बट फॉर योर रेफरेंस आई विल राइट डाउन, आई विल डू दैट वर्किंग इन दिस बॉक्स। इस बॉक्स में मैं वो वर्किंग करता हूँ। ठीक है, राइट डाउन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट अयोटा रेज टू 8 का वैल्यू। अगर अयोटा रेज टू 8 का वैल्यू आ गया तो अयोटा रेज टू 9, 10, 11 एवरीथिंग विल गेट। ठीक है, नाउ राइट डाउन अयोटा रेज टू 8। नाउ बाय लॉ ऑफ इंडाइसेस अयोटा रेज टू 8, अच्छा ये जरा ना मैं मार्क्स रब कर देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा ऊपर से लिखता हूँ नहीं तो ये स्पेस में आएगा नहीं। जस्ट गिव मी 1 मिनट, I'll start from here at the top. Now iota raised to 8 का value I was saying we have to find out. Now by the law of indices iota raised to 8 is iota square to the power 4. A raised to m raised to n, laws of indices से a raised to m into n होता है, and also equivalently this can be written as a raised to n raised to m. They are all equal to each other. Recollect indices topic, we have done it in lower standards. So laws of indices say I raised to 8 का value I raised to 8 will be written as I square to the power 4. अभी देखो I square का value वहां पे, तो I square का value is -1 to the power 4. So -1 to the power 4 that is nothing but +1. So iota raised to 8 का value +1 आ गया। Right on, first step. अभी हमें फाइंड करना है अयोटा रेज टू 9 का वैल्यू स्टूडेंट्स। तो अयोटा रेज टू 9 का वैल्यू इज अयोटा रेज टू 8 into iota raised to 1. We know a raised to m plus n is a raised to m into a raised to n, laws of indices. That this procedure makes this problem important. So iota raised to 9, now 9 is 8 plus 1 ना, so it will be written this way. अभी देखो अयोटा रेज टू 8 का क्या वैल्यू है, अयोटा रेज टू 8 का वैल्यू है 1 इंटू अयोटा इज नथिंग बट अयोटा, तो अयोटा रेज टू 9 का वैल्यू अयोटा आ गया। अभी हमें फाइंड करना है अयोटा रेज टू 10 का वैल्यू। तो अयोटा रेज टू 10 इज अयोटा रेज टू 9 इंटू अयोटा रेज टू 1। 10 कैसे लिखेंगे, 9 plus 1, सी द लॉ ऑफ इंडाइसेस, a रेज टू m plus n is a रेज टू m इंटू a रेज टू n होता है। लॉ तो हम कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं ना। अभी अयोटा रेज टू 9 का वैल्यू इज अयोटा, अयोटा इंटू अयोटा इज अयोटा स्क्वायर एंड अयोटा स्क्वायर का वैल्यू इज -1। अयोटा रेज टू 9 का वैल्यू देखो हमें मिल गया है अयोटा, अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर। एक वैल्यू मिल गया तो बाकी सारे वैल्यूज मिलते जाते हैं। वैसे इसमें दूसरा भी प्रोसीजर है, there is one short trick also, but that I will teach you when we move on to higher powers of iota. एक कंसेप्ट है जिसमें पावर्स ऑफ अयोटा वाले प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करने हैं, तो वो कंसेप्ट अलग है, तो उसमें मैं आपको शॉर्टकट भी सिखाऊंगा। अभी ये थोड़ा लॉन्ग कट है बट ठीक है। नाउ अयोटा रेज टू 11 इज अयोटा रेज टू 10 इंटू अयोटा रेज टू 1।
अयोटा रेज टू 10 का वैल्यू इज -1, -1 इंटू अयोटा इज माइनस अयोटा। तो देखो अयोटा रेज टू 8 का वैल्यू 1 आ गया, अयोटा रेज टू 9 का वैल्यू अयोटा आ गया, अयोटा रेज टू 10 का वैल्यू -1 आ गया, अयोटा रेज टू 11 का वैल्यू माइनस अयोटा आ गया। प्लीज नोट डाउन एंड एट द सेम टाइम ऑल्सो नोट डाउन दिस लॉ ऑफ दीज टू लॉज ऑफ इंडाइसेस एट द टॉप ऑफ द पेज। ये सारी चीजें अच्छे से लिखते जावा। ये जैसे फॉर्मूलेज देता हूँ, a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला दिया, a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला दिया, तो प्लीज नोट डाउन प्रॉपरली एट द टॉप ऑफ द पेज। हमेशा कभी भी बीच में नहीं लिखना। जो प्रीवियस लर्न किए हुए फॉर्मूलेज है, यू राइट डाउन ऑलवेज एट द टॉप ऑफ द पेज, ताकि क्या होगा, यू कैन इजीली लोकेट देम। ठीक है, राइट डाउन। अच्छा, अब ये लॉज ऑफ इंडाइसेस में रब कर देता हूँ, बिकॉज वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी हम क्या करेंगे, ये जो सारे वैल्यूज हमने फाइंड किए ना, वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो आई होप यू मस्ट हैव रिटर्न। सो रिटर्न नेक्स्ट स्टेप, 4 रिमेनिंग सेम, अयोटा रेज टू 8 का वैल्यू इज 1, माइनस 3 इंटू अयोटा रेज टू 9 का वैल्यू इज अयोटा प्लस 3 रिमेनिंग सेम। ये न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर 3 इंटू अयोटा रेज टू 11 का वैल्यू इज माइनस अयोटा, -4 इंटू अयोटा रेज टू 10 का वैल्यू इज -1 एंड दिस -2 रिमेनिंग सेम। अब ये वैल्यूज ऑलरेडी लिख दिए हैं। अच्छा, एग्जाम में ये वर्किंग शो करना जरूरी नहीं है, देन यू कैन जस्ट राइट डाउन द रीजन, सिंस अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इतना आपने लिख दिया ना तो भी काम हो जाएगा अपना। इट इज अंडरस्टूड, सिंस अयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 है, इसीलिए ये सारे वैल्यूज आए। तो लेट्स सिंप्लीफाई। तो दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 -3 अयोटा प्लस 3 अपॉन दिस इज -3 अयोटा प्लस 4 -2। इसको हम रीअरेंज करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बिकम 4 प्लस 3 7 -3 अयोटा अपॉन 2 -3 अयोटा। रीअरेंज करके लिख दिया मेरे डिनोमिनेटर। रियल पार्ट टू द रियल पार्ट, 4 प्लस 3 7 हो गया, -3 अयोटा सेम रहेगा, 4 -2 इज 2, -3 अयोटा सेम रहेगा। प्लीज नोट डाउन टिल हियर। अभी स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, आपको आगे का प्रोसीजर पता है। We have to multiply and divide by the complex conjugate of the denominator. Write down for your reference. ऐसा लिखो, multiply and divide by complex conjugate of denominator. डिनोमिनेटर का शॉर्ट फॉर्म लिखा है। So write down what will happen. अब मैं ये नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। So therefore this will be, लेफ्ट हैंड साइड तो सेम रहेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इज 4 इंटू आई रेज टू अयोटा। लिख लो आप लेफ्ट हैंड साइड। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे का प्रोसीजर आप खुद भी कर सकते हो। 7 -3 अयोटा अपॉन 2 -3 अयोटा, एंड 2 -3 अयोटा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज 2 + 3 अयोटा। नाउ टू सेव टाइम वी विल राइट डाउन लेस नंबर ऑफ स्टेप्स। थोड़ा हम डायरेक्टली करने की कोशिश करेंगे। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया हमने। नाउ open up the brackets in the numerator, students. So let's write down what will this become. This will be further equal to, ये हो जाएगा 14 plus 21 iota. This will become -6 iota minus 9 iota square. Numerator हो गया। Denominator 2 का square is 4 minus 3 iota the whole square. So that will become 9 into iota square.
अभी ऐसे जरूरी नहीं कि आप लिखो 3i द होल स्क्वायर, नॉट रिक्वायर्ड, यू कैन राइट डाउन डायरेक्टली। अभी आयोटा स्क्वायर का वैल्यू डाल देते हैं, तो दिस विल बिकम 14। अच्छा, वी कैन सिंप्लीफाई दिस, 21 आयोटा माइनस 6 आयोटा इज पॉजिटिव 15 आयोटा, ठीक है, और ये हो जाएगा +9 अपॉन इन द डिनोमिनेटर दिस विल ऑल्सो बिकम 4 + 9। कैसे मिला डायरेक्ट, तो रीजन आप लिख लो, सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये हमने वैल्यू यूज किया है, नोट डाउन। तो ये स्टेप हमने स्टूडेंट्स डायरेक्टली किया है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 है, तो -9 इंटू -1 +9 इधर भी हो गया और +9 इधर भी हो गया। इतना अलाउड है डायरेक्टली करना, दिस इज अलाउड। नाउ व्हाट विल डू, सिंप्लीफाई रियल पार्ट विद द रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम सेपरेट रखेंगे। तो 14 + 9, so that is 23 plus 15 iota upon 13, डिनोमिनेटर स्प्लिट कर देंगे जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में किया है। तो दिस विल बी 23/13 प्लस 15/13 into iota. Now compare, left hand side is the same, this is, ये मैं लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। Compare with a plus b iota and write down the value of a and b. तो सर देखो, comparing 23/13 plus 15/13 iota with a plus b iota, ठीक है। So therefore students, value of a is 23/13, ठीक है, and value of b is 15/13, and that completes the problem. Please note down this. So students, with this example, we have completed question number 4 of exercise number 1.1. अभी जो remaining problems है ना क्वेश्चन नंबर 4 के, they can be done very easily, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन वाला है और वही सारे प्रॉब्लम्स सिर्फ बच गए हैं। तो प्लीज नोट डाउन योर होमवर्क सेक्शन। अच्छा, जो एग्जांपल्स मैंने आपको लिख के दिए हैं साइड वाइज है ना, कभी कभी मैंने थोड़े एग्जांपल्स आपको एक्स्ट्रा भी लिख के दिए हैं, वो भी एग्जांपल्स आपको होमवर्क के लिए करने हैं, एज वेल एज एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 4 के remaining problems are to be done as homework section. So today we have completed with one of the type 1 हमारा complete हो गया है, which was express the following in form of a plus iota b and find out the value of a and b. So next time when we meet, हम type 2 start करेंगे। ये type 1 हमारा आज खत्म हो गया। So please keep studying and keep watching my YouTube channel. Thank you very much.